आई थिंक कि काफ़ी अनप्लैंड तरीके से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस मुंबई में चल रहे हैं, साउथ बॉम्बे में, नॉर्थ बॉम्बे में, सब जगह। जी और उसके वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। View is not just about the beautiful Arabian Sea or city skyline, but it is about a visible haze. कैन दे प्लान इट बेटर इन अ वे जहाँ पे पोल्यूशन कम हो? अनप्लान्ड की आपने बात कही। अब मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिटी पहले डेवलप हुआ, उसके बाद में डेवलपमेंट प्लान आ गया। जैसे नई मुंबई का आप देखेंगे तो प्लान पहले हुआ, उसके बाद में उसको डेवलपमेंट किया। यानी रास्ते कितने बड़े होने चाहिए थे, फुटपाथ होना चाहिए था, मार्केट होना चाहिए था, जितने भी हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारा प्लान के हिसाब से बन गया। जो तरीके से एक पावर डायनामिक्स चलता है पॉलिटिक्स में, मेरी जगह पे से मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है। इधर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए या तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर मेरे पास इन दो चीज़ में से कुछ भी नहीं है तो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। जी, बात बहुत सही आपने कही, और ये करना पड़ेगा। अपर मिडिल क्लास के लोगों को पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि लेनी पड़ेगी। डॉक्टर जो होते थे वो चुनाव लड़ते थे, जो एडवोकेट्स है वो चुनाव लड़ते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चुनाव लड़ते थे। लेकिन बीच का एक जो 3-4 डिकेड जो मैं देखा, उसमें से इस प्रकार के लोग कम हो गए आने। और जब कोई नहीं आता तो फिर जो है वो आ जाता है। जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में यहाँ तो विधानसभा में हर बात में ये कहा कि मेरे मतदार संघ में मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान होशियार लोग हैं, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाए। अब मैं आया हूँ तो मैं जो भी कहता हूँ ये उनकी आवाज़ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। 2004 से 2023, from 2004 to 2023, about 60% of political party money has come from unknown and undisclosed sources. किसी के पास ट्रेस नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, अकाउंट्स में कुछ है नहीं। इसका उत्तर मैंने दे दिया। Namaste guys, I hope you all are doing well. On today's show we have Mr. Gopal Shetty. Gopal sir is a former Lok Sabha member and has represented a city like Mumbai for a very long tenure. I want to share a story before this introduction. So right before the episode, I ended up asking Gopal sir in a very nervous state of mind that, sir, few questions that I have here are really blunt. And can I ask all these questions to you while we start rolling the episode? To which he replied कि ask me any questions. आप कोई भी question पूछो और मेरे पास आपके हर सवालों के जवाब है. And with that approach, we talked about the educational system of India. We talked about corruption that still exists in system. We've talked about infrastructure. We've talked about how India is planning to develop in next 10 years. And we've talked about politics in general. I'm pretty sure that you guys are going to enjoy this episode. For now, I will let you all slip into this very insightful episode featuring Mr. Gopal Shetty sir on Escape the Mold with Josh. Thank you. Sir, firstly, thank you so much for coming to our podcast. Thanks for calling me. So, few percentage of audience who doesn't know who Gopal Shetty sir is, would you like to introduce yourself? Definitely, I'm a citizen of Mumbai. I stay at Borivali from my childhood only. When I was age of 4, I went to my native place, Mangalore, which is. Then at the age of 6, I came back to Mumbai. I started my education here only in Poisar, Our Lady of Remedy High School. My father was a 4th class employee, so I born up in a very poor family. We 4 brothers, 2 sisters, father, mother were staying in a 200 square feet house. From there I grew. Because of financial status of my family, I could not complete even my education. Then in the teenage only, I started doing apprenticeship. I did a turner, welder, fitter, die maker. Then I started my own unit at Sadhana Industrial Estate by the name of Sainath Engineering.
which I run for mostly 3 decades, 30 years. And in the year 1980-81, I joined Bharatiya Janata Party. Then MLA Ram Naik ji was the MLA of Borivali. He found something in me and he asked me to join the party, but I refused because politics was not my loving subject, I will say. But then after entering to politics, I devoted myself to people and party. So I started as a general secretary of Borivali Bharatiya Janata Party. Then I became president. Then in the year 1992, first time party asked me to contest a corporation election. I told I'm doing well in my business. I don't want to enter into politics, but Ram Naik ji forced me to contest the election. I contested. First election I won. Then second time, third time, 3 times as a corporator. After that I contested MLA election 2 times as a MLA. Then 2 times as a member of parliament. So 7 election in a row, always by highest margin. The people of my constituency have voted me. I will not say that I have won. The people have got me elected. And I have done my best to serve the people. वेरी वेल सर, आज कुछ टॉपिक्स है जो हमने आपके बारे में रिसर्च किया है एंड जी हाँ। आज कुछ टॉपिक्स जो मुझे कवर करना है, जैसे कि हेल्थ केयर एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ आवर कंट्री, जी हाँ। एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का यूथ एंड करप्शन. तो इस पे कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आज आपसे पूछना है. You can. सर, आपने इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ मुंबई. जी हाँ. आपके हिसाब से मुंबई जैसे सिटी में हेल्थ केयर चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं लोग? देखिए सब, एक बात तो ये है कि देश का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ते गया. जो पॉपुलेशन मुंबई शहर में हम आज से 25 साल के बाद का एक्सपेक्ट किया था, उसको हमने 25 इयर्स पहले ही मीट कर लिया. पॉपुलेशन बढ़ते गई और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होना चाहिए था वो हुआ नहीं. अभी हम कर रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन उससे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. ह्यूमन पॉपुलेशन का ये या तो ट्रैफिक का मुद्दा है, तो चाहते हुए भी काम बहुत कुछ हो रहे हैं लेकिन लोगों को जितना समाधान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. ये हम भी महसूस कर रहे हैं. लेकिन एज ए गवर्नमेंट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और निश्चित 2014 के बाद में आप देखेंगे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में सेटअप होने में शुरुआत के 3-4 साल निकल गए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश नहीं कि तिजोरी में बहुत सारे पैसे पड़े हैं और लेके उसको यूज़ कर लो. जो भी पैसा टैक्सेस के माध्यम से आता है उसी पैसे में सारा करना है. और 2014 के बाद में आपने देखा कि बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में भी, और बड़े पैमाने पे काम हो रहा है. लोग समाधान भी है, इसलिए तो दूसरी बार तीसरी बार मोदी जी को चुन कर दे रहे हैं. और एजुकेशन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है. हर माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी से अच्छी मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, पेट मार के मन मार के भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. और एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है. जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसको पिकअप भी कर रहे हैं. लेकिन उसके सामने जो उनको दिखता है, जो उनकी अपेक्षा है, वो पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा हम भी महसूस कर रहे हैं. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा ये वास्तविकता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो हम बचपन में थे तो हमको दिखाई नहीं देता कि देश में भी क्या हो रहा है करके. आज दुनिया में क्या हो रहा है वो हमको यहाँ पर बैठे बैठे देखने के लिए मिलता है. तो उससे जब हम मैच करते हैं तो वो एक बड़ा मैस जैसा सिचुएशन में आज का टीनेज, एजुकेटेड पीपल, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग उसको देखते हैं. और जो बेचारा एकदम नीचे वाला है वो तो अपने कामकाज मजूरी में से उसको बाहर निकलने के लिए समय मिलता नहीं है. तो टोटलिटी में ऐसा लगता है कि सभी हैरान परेशान है.
सरकार भी हैरान परेशान है, हम लोग भी काम करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले एक पूरा मोदी जी का 12 साल का काम को सामने रखकर एक 6-8 साल में बड़ा बदलाव लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और जो प्लानिंग हो रहा है वो बहुत तेज़ी से भी आगे जाएगा, क्योंकि किसी भी सरकार को या तो किसी भी एक व्यक्ति को पहले प्लानिंग करने में समय लग जाता है। अब प्लान पूरा हो गया है, क्या करना ये तय है, काम हो भी रहा है, अब उसको भी तेज़ी से आगे बढ़ाना यही है। हेल्थ के बारे में आपने पूछा, तो हेल्थ महंगा बहुत हो गया है। सरकार बहुत सारे स्कीम के माध्यम से लोगों को सहूलियत मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। आयुष्मान के माध्यम से हर व्यक्ति को बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए पैसे देने की व्यवस्था हुई है। 5 लाख रुपए तक का खर्चा किसी को करना नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था हुई है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि आसपास में सभी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के दायरे में आया नहीं है, ये भी एक दूसरी की उसकी वास्तविकता है। वो प्रयास हम कर रहे हैं, और जिस दिन ये सारा सेटअप हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से भी बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, बहुत सारे स्कीम है, उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का सामान्य लोगों को इलाज हो, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। एक हमारे देश के लोगों का मेंटल सेटअप भी इस प्रकार का हुआ है, सस्ता मेडिसिन सरकार के माध्यम से जो भी मिलता है, तो लगता है कि इससे हम ठीक नहीं होंगे। महंगा दवा बड़े डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, बड़े डॉक्टर के पास ही जाना है। अपना दवाखाना जगह जगह पर खोलने का प्रयास सरकार के माध्यम से हुआ है। मुंबई महानगर पालिका में भी उसमें काम में लगे हुए हैं। लेकिन लोगों का एक मेंटल सेटअप भी इस प्रकार का हुआ है कि नहीं, हमको बीमार हुआ है तो बड़े डॉक्टर के पास ही जाना है। फिर बड़े डॉक्टर के पास जाते तो फिर वहाँ पर बड़ा बिल आ जाता है, बिल आ जाता तो फिर पैसे होते नहीं है। ये सारा इस प्रकार का एक प्रॉब्लम लोगों के सामने खड़ा हुआ है, ऐसा हम सब लोग देख रहे हैं। 50 साल के पहले, अगर 60 साल के पहले की आप करेंगे, तो जब हम बहुत छोटे थे तो मेडिकल एजुकेशन ये सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से किया जाता था। अब धीरे धीरे, अच्छा, उनको उन दिनों में सहूलत भी थी, इलेक्ट्रिसिटी में उनको सहूलत दिया जाता था, असेसमेंट टैक्स में सहूलत दिया जाता था, गवर्नमेंट के पास से मदद भी मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये सारा बंद हो गया। तो मैंने अपने जीवन काल में देखा कि बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, बंद ही हो गया। आज भी आप कांदिवली बोरेली में भी देखेंगे तो जो ट्रस्ट के जो भी प्रॉपर्टी थे, जहाँ पर दवाइयाँ लोगों को मिलती थी, वो सारा भी बंद हो गया। प्राइवेट लोग सारे आ गए, प्राइवेट लोग आ गए तो जो बिल्डिंग है उसमें जगह बहुत कॉस्टली हो गया। अब जो पैसा लगा हुआ है, हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि वो तो यहाँ पर इनकम करने के लिए आया है, वो चैरिटी करने के लिए नहीं आया। चैरिटी वाले सब बंद हो गए। एक बड़ा प्रॉब्लम मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 साल फाइनेंस कमेटी में भी काम करने का मौका मिला, और मैंने इसके बारे में चिट्ठी भी लिखी है, जगह जगह पे जब भी मौका मिलता तो मैं बात भी करता हूँ। इन दिनों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या तो फिर मेडिकल के फील्ड में जो लोग भी है, तो उनको बैंक में से जो लोन मिलता है वो शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, 10 साल के लिए होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप जो लोन दे रहे हो एक एसेट के ऊपर दे रहे हो, वो एसेट तो परमानेंट है, वहाँ पर जो बिल्डिंग आज बनी हुई है वो 50-100 साल वहाँ ही रहने वाला है। तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन देना चाहिए हम लोगों ने, और रिजनेबल रेट में लोन देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो नेशनलाइज बैंक के माध्यम से दिया जाता है 6-8% में, तो वही परसेंट में अगर लोगों को लोन मिला, अभी NBFC के पास जाते हैं तो 15%, 20% शॉर्ट टर्म 10 साल में उसको पूरा करना है। तो जो भी लोन लिया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले ने, या तो फिर मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग भी है, तो ये 10 साल के पीरियड में उसको पूरा कमाने का वो प्रयास करते हैं, क्योंकि बैंक को भरना है, अपना भी खर्चा चलाना है। तो ये सारा का सारा जो लोड है वो पेशेंट पे आ जाता है। तो इसके पर एक बड़ा गंभीरता से सभी लोगों ने मिलकर सोचने की आवश्यकता है। जो सोचते हैं उनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय है वो सोचते हैं, तो एक मैच नहीं हो रहा है। और इसलिए ये तीसरा जो आदमी है वो पीछा जा रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। ये आज की वास्तविकता है। सर, अभी के करंट सिचुएशन जो आपने मेंशन की है, वो सबको नज़र में रखते हुए अगर आपको पावर दी जाए
आपके हिसाब से हेल्थ केयर को चेंज करने की, तो फॉर टू मेक इट बेटर आप क्या देखिए, करोगे? पावर मुझे मिले या पावर अन्य किसी के पास है, इससे बहुत बदलाव नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 14, 16, 18 घंटा काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो खुद भी समाधान नहीं है, क्योंकि उनकी जो भूख है देश को सर्व करने का या तो लोगों को सुखी देखने का, वो बहुत उससे आगे है। वो भी मीट नहीं कर पा रहे। इसलिए सारे लोग मिलकर अगर करेंगे तो ये होगा। अब सारे लोग मिलकर करेंगे, ये बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको वास्तविकता में उतारना ये बहुत कठिन है। क्योंकि घर परिवार में अगर 4 भाई है तो चारों भाई भी एक दिशा में चलते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हम मानते हैं, सारे देश के लोग भी मानते हैं, इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टी के लोग भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं। लेकिन अच्छे लोग होने के बावजूद भी सभी का माइंड एक ही जैसा चलता है, वैसा नहीं है। सभी को हर चीज़ का नॉलेज है, ऐसा भी नहीं है। तो मैच नहीं होता है, और मैच ना होने की वजह से जो सॉल्यूशन हमको मिलना चाहिए, या तो जो सॉल्यूशन को हम खोज रहे कर रहे हैं, वो प्राप्त होता नहीं है और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसलिए परेशानी है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने काफ़ी एरिया देखे पॉलिटिक्स के, उसके हिसाब से आपको करंट जो तरीके से डेवलपमेंट मुंबई में चल रहा है, हम पहले मुंबई की बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट इंडिया। आई थिंक कि काफ़ी अनप्लैंड तरीके से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस मुंबई में चल रहे हैं, साउथ बॉम्बे में, नॉर्थ बॉम्बे में, सब जगह। जी। और उसके वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। लेटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मुंबई की एंड काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ की इंडिया में। कैन दे प्लान इट बेटर इन अ वे जहाँ पे पोल्यूशन कम हो? देखिए, पॉल्यूशन के बारे में अब एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब मैं देखता हूँ, और एजुकेटेड लोग, और जो टेक्निक और टेक्नोलॉजी का सिस्टम का जो हमारे देश में उपयोग हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। आप एक 40 साल के पहले का जो, या तो 20 साल के पहले की अगर हम बात करेंगे, तो जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन के जगह पर ही रेडी मिक्स तैयार किया जाता था। अब रेडी मिक्स भी बाहर से होकर आता है, यानी सीधा जगह पे, कंस्ट्रक्शन के जगह पे आकर जो भी कंक्रीटाइज करना है वो करते हैं। तो जब जगह पे हो रहा था, उन दिनों में इतना पॉल्यूशन का आवाज़ नहीं था। ये बात भी सही है कि कंस्ट्रक्शन जितना बड़े पैमाने पे आज हो रहा है, उतना बड़े पैमाने पे उन दिनों में नहीं हो रहा था। ये भी उसका एक दूसरी वजह है। फॉर एग्जांपल, कंक्रीट रोड का काम इतने बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया, एक अच्छा भी है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये जो कहावत बहुत पहले से बनी हुई है। थोड़ा अगर आपको सुख पाना है तो उसके पहले थोड़ा आपको दुखी होना पड़ता है। वैसे हालात में आज हम लोग हैं। अब या तो आप स्लो में काम करो तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, समय भी बहुत लगेगा और महंगा भी होते जाएगा। आज सारे मुंबई में एक साथ में हो गया। अनप्लान्ड की आपने बात कही। अब मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिटी पहले डेवलप हुआ, लोग उसके बाद में डेवलपमेंट प्लान आ गया। जैसे नई मुंबई का आप देखेंगे तो प्लान पहले हुआ, उसके बाद में उसको डेवलपमेंट किया। यानी रास्ते कितने बड़े होने चाहिए थे, फुटपाथ होना चाहिए था, मार्केट होना चाहिए था, जितने भी हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारा प्लान के हिसाब से बन गया। मुंबई शहर में ऐसा नहीं। मुंबई शहर में जहाँ पर स्कूल का प्लॉट था तो प्लॉट जमीन मालिक के पास था, सरकार के पास, कॉरपोरेशन के पास भी पैसा नहीं था उसको एक्वायर करने के लिए, गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, लोगों ने बेच दिया। दूसरी जगह पे मुंबई में बड़े पैमाने पे कामकाज मिल रहा था लोगों को। अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आ गए तो कोई गवर्नमेंट ने तो घर बना कर रखा नहीं था किसी के लिए। जहाँ पर जगह मिला, जमीन मालिक से ज़मीन ले लिया, घर बना लिया, झोपड़ा बना लिया, और ऐसा करते करते रिजर्वेशन के प्लॉट पे भी झोपड़े बन गए। तो जो स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में प्लान किया था, वहाँ पर एंक्रोचमेंट हो गया, तो यहाँ के बच्चों को भी जाना पड़ा दूसरी जगह पे जहाँ पर स्कूल बना है। तो सारा मैस हो गया है। उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ ढंग से मुंबई शहर चल रहा है। यानी टोटली प्लान जो था वो फेल हो गया।
पॉपुलेशन 25 ईयर्स पहले हम लोगों ने मीट किया, भिन्न भिन्न प्रकार के सब यूटिलिटीज़ आ गई, जो फॉर एग्जांपल चारकोप जैसा परिसर में लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए घर बनाया सरकार ने। साइकिल की अपेक्षा की थी, लोगों के पास सिर्फ साइकिल होगा। आज वहाँ पर बाय एंड लार्ज 10 में से 8 लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई। रास्ते 30 फुट के थे। अब कभी कभी मेरे जैसा व्यक्ति भी हैरान हो जाता है, यहाँ पर भी पार्क गाड़ी है, वहाँ पर भी गाड़ी पार्क है और बीच के रास्ते में से चलता है। कैसे चलता है ये कभी कभी हम भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन चल रहा है सिस्टम। तो प्लानिंग सब फेस हो गया। अभी सेकंड फेज का कामकाज चालू हो गया। अब सेकंड फेज का कामकाज चालू हुआ तो एकदम सीसी रोड का काम चालू हो गया, उसका पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सेकंड फेज का कामकाज शुरू हुआ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम, रीडेवलपमेंट का अगर कहीं देखेंगे तो नॉर्थ मुंबई, उत्तर मुंबई में है। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे ओपन स्पेसेस है। एक तो डेवलपमेंट प्लान का में जो था उसको हम लोगों ने बचा के रखने का प्रयास किया। दूसरी जगह पे नेशनल पार्क इतना बड़ा एरिया इन दिस सिटी है, उसके हिसाब से अभी भी पॉल्यूशन का जितना चिंता हम लोगों ने करनी चाहिए उतना नहीं, ऐसा मानकर हम चलेंगे। और दूसरी एक बात है कि एजुकेट भी लोग हो गए, तो थोड़ा सा भी दिख गया तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब ये खांसी, ये को अभी तो नहीं आया। अब अगर किसी को खांसी आती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ गया है, ये बता देते हैं। लेकिन खांसी तो बचपन में है। मेरी उम्र आज 70 प्लस की है, तो मैं 5-7 साल का हो गया और मुझे समझने लगा, तब से खांसी ये शब्द तो पहले से ही है। उन दिनों में भी तो खांसी होती थी ना, उन दिनों में भी होता था। लेकिन देखने का एक नज़रिया जिसको हम कहेंगे वो बदला उसमें बदलाव आ गया। एजुकेशन का बड़ा लाभ पहुंच गया लोगों को। हर व्यक्ति अपने आप में एजुकेट हो गया है और ये सारा समस्या का ये या तो फिर मसला जो है वो पूरा सरकार पर आ गया। हर चीज़ को सरकार से लोग जोड़ते हैं, जोड़ना भी चाहिए। ये हमारी कमजोरी कहिए कि या तो फिर समय का अभाव, समय न मिलना, ये एक उसका कारण हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को उतना एजुकेट नहीं कर पाए। जिसको एजुकेशन लेना है वो भी अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसको सुनने के लिए समय नहीं है। जो काम कर रहा है उसको गाइड करने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये सारा सिचुएशन पैदा हुआ है मुंबई शहर में, लेकिन मैं आशावादी हूँ इसमें से रास्ता निकलेगा और सब लोगों को मिलकर निकालना पड़ेगा तो जल्दी निकलेगा। अदरवाइज निसर्ग तो अपना काम करता ही है, उसके माध्यम से तो निकलना ही है। गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी होना है वो तो हो ही रहा है, होगा। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को सिस्टम के साथ में जोड़ लेता है तो बहुत तेज़ी से हम अचीव कर पाएंगे। सर, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के काम जो मुंबई में अभी चल रहे हैं, इनमें से काफ़ी सारे काम जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सिटीज़न है, जो मुंबई के रहने वाले, वन थिंग दे हैव नोटिस्ड इज़ कि काफ़ी कामों में डीले बहुत होते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या जी हाँ। कहीं पे बिल्डिंग का काम हो गया या एनीथिंग, कुछ काफ़ी कामों में डिलेज बहुत है। तो वो डिलेज का एक्चुअल रीज़न क्या है? क्या करप्शन रीज़न है या रेड टेप रीज़न है? करप्शन का अपना जगह तो बना हुआ है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं नकारूंगा, क्योंकि मैंने तो सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है, उसके साथ में लड़ा है। करप्शन को आप नकार नहीं सकते हो। दूसरा डिले भी है। अगर क्रिटिसिज्म को अगर छोड़ें हम, तो इतना कंजेशन में भी काम हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे रास्ते को एक पैच पूरा करके दूसरे पैच में से ट्रैफिक को चालू रखना और फिर यहाँ का काम पूरा करके फिर ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट करना, फिर दूसरा करना, ये करते 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 बड़े पैमाने पे काम हुआ है। ये भी हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा, रात के समय पर भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। अब लोगों में थोड़ी जागरूकता आ गई है। कुछ लोग रात को करने नहीं देते हैं, तुरंत फ़ोन कर देते हैं, फिर काम बंद करना पड़ता है। फिर हमने मैनुअल बनाया, गाइडलाइन बनाया, सवेरे इतना बजे काम शुरू करने का, इतने बजे बंद करने का। उसके 1 घंटा भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा काम करता है तो लोग शिकायत करते हैं।
ये सारा अपने जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है, चल रहा है परेशानी है, लेकिन हो रहा है। इस बात को भी तो हमको मानना पड़ेगा ना, इस बात को भी तो मानना पड़ेगा। सर, आपका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ यू एज गोपाल शेट्टी सर एंड देन योर प्रोफेशनल लाइफ्स एक्सपीरियंस, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी आपके लाइफ में। आपको करंट जो यूथ है इंडिया का, उसके बारे में आपका क्या थॉट है? करंट यूथ के बारे में मैं बहुत प्राउड भी महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी होता है। प्राउड इसलिए महसूस करता हूँ कि बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो टीवी वगैरह इतना अपने देश में आ गया, भिन्न भिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट सारी व्यवस्था आने के बाद में जो फॉरेन के माध्यम से जो अपने कल्चर पर जो डंप किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से, तो ये सारा देखने के बाद में ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे क्या करेंगे करके। लेकिन बच्चे हो सकता है कि देखते सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाया है। ये हो सकता है हमारे भारतीय कल्चर का एक उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये सारे में से बचने के बाद में वो एजुकेटेड होने के बाद बहुत सारे लोग विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो सुपर ब्रेन अगर हमारे देश में से बाहर शिफ्ट होगा, अभी जो हो रहा है इसके पहले भी हुआ है, अगर यही रफ्तार शुरू रहा तो फिर तकलीफ होगा, ऐसा लगता है। अब इसमें जो जा रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है। इतना मेहनत करके, इतना पढ़ाई करके यहाँ पर अगर जॉब नहीं उनको मिले तो, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जॉब भी मिल रहा है और मोर देन एक्सपेक्टेड पगार भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, और जो सुविधा के बारे में सोचा नहीं होगा वो सुविधा उपभोगने के लिए वहाँ पर मिल रहा है, तो जा रहे हैं लोग। अब देश के प्रधानमंत्री बहुत प्रयत्न कर रहे, प्रयास कर रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे, इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पर करे ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़े। और इसलिए उन्होंने स्टार्टअप की बात की, स्टैंडअप की बात की कि आप काम खोजने वाले मत बनो, जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो, ताकि आप अपना स्वयं का यूनिट खड़ा करो, इंडस्ट्री खड़ा करो। अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आंदोलन के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो एक जगह पे अगर आप इंडस्ट्री को आने नहीं दोगे तो इंडस्ट्री नहीं आएगा तो जॉब कैसे मिलेगा लोगों को। इंडस्ट्रियल सेटअप देश में करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल सेटअप के माध्यम से हमारे देश के लोग आगे बढ़े उसके बारे में सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रयास करके एफडीआई के माध्यम से लोगों को एनकरेज कर रही है, लोग आ भी रहे, लेकिन अपना देश का कोई बिजनेसमैन अगर बढ़ रहा है तो फिर उसके बारे में अनाप शनाप बातें भी होती थी। ये 50 साल के पहले भी होता था, अब भी होता था। हम लोग भी जब पॉलिटिक्स में विरोधी पार्टी में थे तो टाटा बिरला को गालियाँ देते थे, अभी अडानी अंबानी को देते हैं। ये माइंड सेटअप को भी चेंज करना पड़ेगा अपने देश के लोगों का, क्योंकि हमारे देश का कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो उसमें हमको दिक्कत क्या है। वो लोगों को जॉब देता है, सरकार को टैक्स देता है। बाहर का व्यक्ति आएगा तो भी वही करता है, लेकिन वो कमाया हुआ पैसा अपने देश लेके जाएगा। कम से कम हमारे देश के लोग पैसा कमाएंगे तो वो पैसा यहाँ ही रहेगा ना, हमारे देश के फर्दर डेवलपमेंट के लिए काम आएगा वो। तो ये लोगों के दिलो दिमाग में डालना पड़ेगा। और ये जो आज के टीनेज है, जो एजुकेटेड हो गए हैं पढ़ लिख कर, यही करेंगे धीरे धीरे करके। देखिए, एक बात को ध्यान में लेना चाहिए कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस प्रकार के कोई करप्शन इसके बारे में बहुत चिंता जरूर करते होंगे, लेकिन कमेंट बहुत कम करते हुए कम से कम मैं देखता हूँ। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। जो छोटा है वो इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसको उसकी पेट की भूख मिटती नहीं है, उसको रहने के लिए 300 फुट का घर भी नहीं है, उसके बच्चों को कभी बीमारी में इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसकी ये प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो टोटलिटी में जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि क्या हम सब लोग मिलकर देश को चला नहीं सकते हैं क्या, तो सब लोग मिलकर देश के तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम देशभक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो मेन ताकत, जिसको मैं कहूँगा कि हमको बचपन से आरएसएस के माध्यम से देशभक्ति सिखाया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आरएसएस बीजेपी पे नहीं है उनमें देशभक्ति नहीं है, कम से कम ये मैं नहीं कहूँगा।
कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा उसका परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। और उसका कोई ना कोई है, जो हमारे देश के बड़े संत लोग हैं, भिन्न भिन्न माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से भी लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल वापस फिर एक बार यहाँ आता है, गरीब आदमी को वो प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है वो अपने काम में लगा हुआ है। इसलिए एक बैलेंस ऑफ लाइफ करना पड़ेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय में जो भी मार्गदर्शन होता है तो उसमें यही सब सिखाया जाता है, बाबा किसने कितना बड़ा होना चाहिए, जो बहुत बड़े है उसको थोड़ा नीचे लाओ, जो बहुत नीचे है उसको थोड़ा एट पार लाकर, इस प्रकार का एक मैकेनिज्म के लिए सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। या हमारी जो जनरेशन है, ये पॉडकास्ट के पहले मैंने मेरी टीम के साथ काफ़ी बातें की क्वेश्चंस को लेके, मैंने मेरे दोस्तों के साथ काफ़ी बातें की क्वेश्चंस को लेके। एंड एक बहुत पॉजिटिव क्वालिटी हमारी जनरेशन की है कि हम एक्चुअली कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे, और हम सोशल मीडिया के थ्रू सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सोल्यूशन टू इट। बट वन थिंग दैट कम्स इन प्ले इज़ कि आज मैं या मेरे दोस्त कभी भी ओपनली ये जाके बोल नहीं सकते कि फ्यूचर में हमें पॉलिटिशियन बनना है, बिकॉज ऑफ द गेम दैट्स गोइंग ऑन। जो तरीके से एक पावर डायनामिक्स चलता है पॉलिटिक्स में, अगर कल सुबह उठ के मुझे मेरी जगह पे से मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है, इधर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, या तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर मेरे पास इन दो चीज़ में से कुछ भी नहीं है तो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। आई थिंक अगर इसमें एक नया पर्सपेक्टिव आपके साइड से अगर मिलता है तो अ लॉट कैन बी चेंज्ड। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बात बहुत सही आपने कही, और ये करना पड़ेगा। अपर मिडिल क्लास के लोगों को पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि लेनी पड़ेगी, उनको इस एरा में आना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बचपन के दिन को अगर याद करता हूँ तो उन दिनों में डॉक्टर जो होते थे वो चुनाव लड़ते थे, जो एडवोकेट्स है वो चुनाव लड़ते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चुनाव लड़ते थे। कि भाई ठीक है, घरदार से ठीक है, सुखी है, देश के लिए करना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के लोग करते थे। लेकिन बीच का एक जो 3-4 डिकेड जो मैं देखा, उसमें से इस प्रकार के लोग कम हो गए आने। और जब कोई नहीं आता तो फिर जो है वो आ जाता है। जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में यहाँ तो विधानसभा में हर बात में ये कहा कि मेरे मतदार संघ में मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान होशियार लोग हैं, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाए। अब मैं आया हूँ तो मैं जो भी कहता हूँ ये उनकी आवाज़ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अच्छे लोग आने चाहिए। और इस बार का कॉरपोरेशन के चुनाव में जो मैं देखा, थोड़ा सा जो स्टडी किया, काफ़ी डॉक्टर्स, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग आए हैं, और ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बदलाव इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये इसकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपका जो आप जैसा आपने कहा कि हम लोग सोचते हो, आप सोचो मत, आप एंटर हो जाओ। यानी आप लोगों को अपने सर्कल में ये बातचीत को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और उसमें से कोई ना कोई आएगा। और ठीक है, कोई नहीं भी आएगा तो एक 25 साल के बाद में तो मैं देखता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो आप कह रहे हो होगा। क्योंकि आज का हर बच्चा, स्लम में रहने वाला बच्चा भी अच्छा पढ़ लिख कर डबल ग्रेजुएट होने का प्रयास कर रहा है। तो जो चीज़ की आप अपेक्षा करते हो या तो बात करते हो, वो ऑटोमेटिकली आना ही है, होगा वो। सर आपने कुछ देर पहले मेंशन किया दैट आप काफ़ी पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हो। हमने आप पे रिसर्च भी किया है, आपका एजुकेशन भी आपने बीच में ही स्टॉप कर दिया था। एंड आज भी आप काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो। द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड योर सेल्फ इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। काफ़ी सारे लोग ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं, दे कम फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड। उनके पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना फाइनेंशियल फाउंडेशन है, और कहीं ना कहीं उनको अंदर है कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है, मे इट बी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और बिजनेस और एनीथिंग। तो आपका उनके लिए मैसेज क्या होगा? देखिए, मैं अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो तो फिर ओवरऑल ओवरऑल तो देखिए, आज
हर व्यक्ति कर ही रहा है ना, हर व्यक्ति कर ही रहा है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। काफ़ी लोग बढ़ भी रहे हैं। 2014 के पहले अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या क्या थी और आज 2025 में क्या है, यानी बहुत सारे लोग एंटर हुए ना, इसमें हो रहे। थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, सिस्टम के माध्यम से। चाहे फिर वो, क्योंकि देश एक तो इतना बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, और गवर्नमेंट के माध्यम से भी थोड़ा पुशअप मिलना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, गवर्नमेंट का एक अपना लिमिटेशन है। फिर एक बार मैं कहूँगा कि जो पैसा सालाना बजट के माध्यम से होता है उसी में उनको खेलना है, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोग थोड़ा आगे आकर थोड़ा खुलकर करेंगे। आज ये भी हम देख रहे हैं कि जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास बहुत है, ऐसे कुछ लोग आगे आकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ एक नया मैकेनिज्म को डेवलप करके लोगों का लाभ कैसे होगा उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो बड़ा बदलाव बहुत तेज़ी से आ सकता है, इतनी क्षमता अपने पास है। भारत देश के लोगों की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वी आर द हार्ड वर्कर्स। हमको ये लगता है कि कोई अगर कर्ज भी लेता है तो उसको सबसे पहला चिंता ये होता है कि मैं कर्ज वापस कैसे कर दूँ। यही खूबसूरती है ना भारत देश के लोगों की। लेकिन जो समय पर उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो फिर वो मायूस हो जाता है। फिर अकेला मायूस नहीं होता, फिर वो बहुत सारे लोगों को जोड़ लेता है अपने पास साथ में। तो इसमें से हमको लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। एक नया सेटअप खड़ी करनी पड़ेगी। ज़मीन बहुत सारे है हमारे पास, उसकी कमी नहीं है। अदर रिसोर्सेस सभी प्रकार के हमारे पास है। वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया और एशिया, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। जो बनेगा वो बेचने का या तो बायर अपने देश में ही है। तो ये सारा जो साइड है वो स्ट्रांग है एकदम। लेकिन जैसे आपने बताया कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अप्रूवल में बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, थक जाते हैं। करप्शन ने अपना जगह बना लिया है, अपनापन लगभग समाप्त होते जा रहा है। अपनापन का जो भावना है वो लगभग समाप्त होते जा रहा है। कोई ऑफिसर के पास अगर कोई व्यक्ति काम लेकर जाता है तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं अगर इसको मदद करूँगा तो ये 10, 20, 50, 100 लोगों को जॉब देगा, ये जल्दी होना चाहिए करके। तो वो बिल्कुल सोचा नहीं जाता है। और फिर इसके वजह से जो करने वाला है उसकी भी जो क्षमता है, ताकत है, वो 50% ख़त्म हो जाती है। फिर उसको जीना तो है ही, इसके लिए उस मजबूरी है कि उसको करना ही है। करता है वो, फिर अपने स्पीड में करता है। जो उसकी कल्पना थी, जो उसकी सोच थी, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अब इसमें सारे पॉलिटिशियन लोगों की सोच एक है क्या, तो वहाँ पर भी वापस फिर प्रॉब्लम है। अगर मैं कोई बिजनेसमैन को मदद करने की बात करता तो फिर मुझे मेरी और देखने का जो एंगल है, लोगों का जो नज़रिया है, पूरा बदल जाता है। अब मेरे बारे में, मैं जनरल पॉलिसी के बारे में आवाज़ उठाते रहता हूँ, लड़ते रहता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि वो गोपाल भाई बिजनेसमैन को मदद करते हैं, गोपाल भाई बिल्डरों को मदद करते हैं। मैं बिल्डरों को इसलिए मदद करता हूँ कि जो बिल्डरों के पास लोग फ्लैट बुक करते हैं वो मेरे पास आते हैं, वो चिंता व्यक्त करते हैं। तो उसको, बिल्डर को अगर ऑफिसर फाइल साइन करके समय पर देगा परमिशन, तो वो काम करेगा। वो काम करेगा तो इसको इसका घर मिलेगा। इसके पीछे का कारण ये है। लेकिन ये कितने लोग समझते हैं? बहुत कम लोग समझते हैं। मैक्सिमम सिस्टम के लोग काम कैसे रोका जाए ये प्रयास में है। तो ये तो देश के लिए बहुत खामियाजा पहुंचाने वाला है ना। हमने ये मानसिकता बनानी चाहिए कि जो व्यवसाय करने वाला है उसको बहुत आसानी हो जाए। एक सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि जो ऑफिसर जो
कम ऑफिस में बैठ के काम करता है, वो जगह पे जाकर परमिशन क्यों ना दे। मोदी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बात की, प्रयास भी किया, हुआ भी है, लेकिन कितने भी अच्छे सिस्टम सरकार के माध्यम से आता है तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है, उसको कोलैप्स करके उनका ही सिस्टम कैसे चले, ये प्रयास में है। इन दिनों में आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि लोगों की अभी लड़ने का, संघर्ष करने की क्षमता भी समाप्त होते आ रही है, ये भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये तो और ख़तरनाक है, ये तो और ख़तरनाक है। थक गए लोग। सर मुझे टैक्सेस के बारे में कुछ बात करनी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में एंड मैं मानता हूँ कि टैक्सेस के बारे में तो सरकार ने बहुत रिलीफ दी है। जीएसटी भी कम कर दिया है, आने वाले दिनों में हो सकेगा तो और भी कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो टैक्सेस के माध्यम से होता है। जितना पैसा सरकार के पास ज़्यादा आएगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे तो उतना बिजनेस कम्युनिटी के लिए लाभ होगा। इसलिए टैक्सेस के बारे में अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो 2014 के पहले जो लोग चिल्ला रहे थे वो तो कम से कम अभी सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो बहुत आउटस्पोकन हूँ, जो मन की बातें वो करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम और आप नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट नाम की चीज़ है उनको पता कैसे चलेगा। इसलिए बताना तो पड़ेगा ही ना। घर में बच्चे भी जब रोते हैं तब माँ उसको दूध पिलाती है ना। तो देश के हित के लिए जो कहना है तो कहना ही पड़ेगा आपको। आप चुप रहेंगे तो कैसा चलेगा, आपका जीवन बेहतर ढंग से बीतेगा। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो मुझे पार्टी टिकट देगी, पब्लिक लोग वोट देते रहेंगे, मैं जीतूंगा, मेरा लाइफ तो ठीक ठाक ढंग से चलेगा। लेकिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं एमएलए किस लिए हूँ? फॉर द पीपल। अगर लोग सुखी नहीं होते हैं तो फिर मैंने 10 बार जीत कर आना भी कोई मायना रखता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए टैक्सेस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी एक नॉर्मल स्टेज पे हम पहुँचे हैं जिससे सरकार का भी चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे भी पर्याप्त उपलब्ध होते हैं और लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी है। ऐसा नहीं है अभी नहीं है। अगर ऐसा कुछ मुद्दा हो तो आप बताएंगे तो निश्चित हम मैं जहाँ पर पहुँचाना हो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सर हमने कुछ रिसर्च किया है जी अबाउट टैक्सेस। सो नंबर 1 इज़ के फर्स्ट जो इनकम टैक्स कट जाता है जी एंड देन जो लोग हैं वो जीएसटी भी पे कर रहे हैं जी उसके बाद। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से द लाइक होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया only 1.6% of the population is paying income tax right now. And we also have some research here about the GST. So only 6.3% people overall ये GST पे कर रहा है और सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ये इनकम टैक्स पे कर रहा है। सो कहीं ना कहीं according to this research, what I think, and I can be wrong, please correct me if I'm wrong. No, you're right. So कहीं ना कहीं ये थोड़ा अनफेयर चीज़ है लोगों के लिए, कहीं ना कहीं उन पे बर्डन आ रहा है। सो आपके ओपिनियन में गवर्नमेंट और कितना इजी कर सकता है टैक्सेशन जहाँ पे गवर्नमेंट को भी इनफ टैक्सेस रिसीव हो? आज की तारीख में कोई व्यवसाय कर रहा है और वो टैक्स नहीं भर रहा है ऐसा नहीं है। कम भरता है ये आप कहेंगे तो मैं मानूंगा। अब गवर्नमेंट टाइट करने का भी जब भी प्रयास हुआ है तो फिर वापस चिल्लाट खड़ी हुई है और फिर गवर्नमेंट को एक स्टेप पीछे आना पड़ा है। या फिर वो पहले की सरकार हो या अभी हमारी सरकार हो, आफ्टर ऑल वी आर वर्किंग फॉर हुम? फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। लोगों के लिए कर रहे हैं। लोग अगर बहुत हैरान है, परेशान है, नाराज़ है सरकार से, तो सरकार को तो वापस सोचना तो पड़ता ही है। तो ऐसा नहीं कि लोग व्यवसाय बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और फिर टैक्स भर ही नहीं रहे सरकार को, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मोदी जी आने के बाद में उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया, इसलिए तो इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब ये आप जो कह रहे हो वो भी बात सही है कि उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। अब मेरे जैसे व्यक्ति के पास का कभी कभी दिमाग में इस बात का आता है कि आज भी जो 2 गाड़ी रखता है अपने घर पर, वो भी जितना इनकम टैक्स भरना चाहिए उतना नहीं भर रहा है। ये मुझे भी दिखता है, मैं महसूस भी करता हूँ। इसलिए
मोदी जी प्रयास ये कर रहे हैं कि फिर आप इनकम टैक्स अगर भरते हो तो उससे आपका लाभ होगा, आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आ जाते हो, बुक्स पे आ जाते हो, और फिर आपको आपका बिजनेस को और ग्रो करना है तो उसको लाभ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया अपने जीवन में, लेकिन मेरे बच्चे को उसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो जितना लोग टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट को, उतना सरकार को भी फ़ायदा होगा और व्यक्तिगत उनको भी फ़ायदा होगा। ये बात भी आप महसूस करते होंगे, पिछले कुछ सालों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो पहले ऐसा होता था कि सरकार के ऊपर लोगों का एक विश्वास ही नहीं होता था। उसको मोदी जी ने थोड़ा उसके ग्राफ को बढ़ाया है। जितना बढ़ना चाहिए उतना बड़ा नहीं है, ये आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर आर्ग्यू नहीं करूँगा, नहीं हुआ होगा, लेकिन बड़ा तो है। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये कि मोदी जी को सिर्फ यही एक काम है क्या, तो नहीं, ये एक काम नहीं है, बहुत सारे कामों के माध्यम से ये सारा करना पड़ता है। अभी आप देखेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर कितना करते हैं, कितना करते हैं। तो जो रफ्तार में वो करते हैं उसी रफ्तार में मुझे लगता है कि उनके जो भी हाथ है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, बड़े पैमाने पे लोगों ने करना चाहिए। लोगों तक जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोगों को बिजनेस में लाकर उनको एस्टेब्लिश, हम नए लोगों को कैसा करें, ये करने का प्रयास करना चाहिए। मोदी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग के माध्यम से आप घर पर बैठकर परमिशन प्राप्त करो, ये भी प्रारंभ किया। बहुत सारे लोगों ने किया भी है और उसका लाभ भी हुआ है लोगों को, लेकिन इसका प्रचार उतने बड़े पैमाने पे हुआ है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी भी जिनको करना है उनको ऐसा लगता है ये नहीं होगा ही नहीं, ऐसा कभी होता है क्या, ये भी कहने वाले लोग हैं बहुत। तो ये बिजनेस सर्कल के लोगों ने भी थोड़ा इसमें काम करने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हर बिजनेस सर्कल का आदमी ये सोचता है कि मेरे जोन में कोई ना आए तो अच्छा है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक ठाक है करके। ये भी एक मेंटलिटी डेवलप हुई है लोगों में। तो ये सारा देश हित के लिए अच्छा नहीं है। जितने बड़े पैमाने पे लोग करेंगे, बड़े पैमाने पे देश ग्रो करेगा, उसका लाभ ऑटोमेटिकली तो आपको मिलना ही है ना, आपको मिलेगा ही। तो ये एजुकेट करना पड़ेगा। अब कौन करेगा, कैसे करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। सर, आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में मेंशन किया कि पॉपुलेशन 25 इयर्स पहले ही जो एक्सपेक्टेड था वो 25 इयर्स पहले ही इंक्रीज़ हो चुका है। उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड आईबीएफ रिपोर्ट्स, इंडियाज़ मिडिल क्लास कुड ग्रो अप टिल 61% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2046 एंड 47। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात अगर आप करेंगे तो इसमें भी मेडिकल साइंस और एजुकेशन ने अपना काम बड़े पैमाने पे किया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक देश था जब 1947 में देश आज़ाद हुआ। पॉपुलेशन उन दिनों का लोग कहते हैं कि 35 करोड़ का था। ओके, 1947 मैं 1954 का मैं बॉर्न हूँ। हमारे घर में 4 भाई और 2 बहन थे। घर में लोग ज़्यादा थे, देश की लोक संख्या कम थी। आज घर में लोग कम हो गए और देश की लोक संख्या 4 टाइम बढ़ गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने के बावजूद। अब इसका कारण आप मुझसे पूछोगे क्या है, तो मेडिकल साइंस ने जो काम किया, डेथ रेट बहुत कम हो गया है। अभी आप बाल मृत्यु लगभग 0% पे होगा, जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा ही। लेकिन हर फैमिली में, जैसे हमारे घर में मेरे पिताजी को, हम 4 भाई और 2 बहन, 6 लोगों का परिवार था। मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की, मेरे घर में। अब मेरा जो लड़की है वो तो एक डॉटर पर ही रुकी है। मेरा जो सन है उसको 2 लड़कियां हैं। मतलब हमारे घर में इतना कमती होते गया। ये जो पॉपुलेशन बढ़ा, उसमें मेडिकल साइंस ने अपना काम किया है। और इन दिनों में आप देखेंगे कि 80-90 प्लस तक लोग जीते भी हैं, वो भी एक कारण है। इसलिए ये सारा टोटलिटी मिलकर
पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है देश में, और ये आप जो कहते हो कि आने वाले दिनों में और बढ़ने का जो भी एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़ा निकाला होगा, लेकिन इसमें लोगों का कोई दोष नहीं है ना। इसमें लोगों ने तो सरकार को कोऑपरेट किया, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में फैमिली प्लानिंग ये वो सब आ गया तो लोगों ने कोऑपरेट तो किया ही ना। हम दो हमारे दो मान लिया लोगों ने। अब तो वापस 2 से 3 की ओर जाने की बात हो रही है, क्योंकि कम्युनलिज्म जो फैक्टर का अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि भारत देश के लोगों ने अपना माइंड सेटअप कर लिया है, क्योंकि उसका पीछे का बहुत सारे कारण भी है। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है बहुत सारे कारण हैं। सर इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है इफ़ आई कैन। या सो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 61% पॉपुलेशन इंडिया का मिडिल क्लास पॉपुलेशन हो जाएगा बाय 2046 और 47, और तभी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको गवर्नमेंट को चेंज करना ही पड़ेगा व्हेन यू सी दिस अमाउंट ऑफ ग्रोथ विद जस्ट द मिडिल क्लास कैटेगरी इन इंडिया। या तो आपके हिसाब से तभी टैक्सेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए? टैक्सेशन सिस्टम बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि एक बात आपको मानना पड़ेगा कि पहले का जो टैक्सेशन जो व्यवसाय करने वाले लोगों का ही आता था टैक्सेस, ओके। जो लेबर क्लास है उनका डायरेक्ट सैलरी में से कट के गवर्नमेंट के पास चला जाता था, लेकिन अभी का जो युवा वर्ग है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर व्यवसाय वो कर रहे हैं। कोई ना कोई माध्यम से इनकम टैक्स का फाइल सभी ने बनाया है, ये कंपलसरी हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो टैक्सेस बढ़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम एक, मुझे लगता है कि कोई ना कोई कानून भी अगर बनाना पड़ेगा तो इट मस्ट बनाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये हो सकता है कि उसको ये कहना चाहिए कि हर स्टेट में आप एक एक इस प्रकार का खड़ा कर दो? कोई ना कोई तो नया तरीका लाना पड़ेगा तो ही होगा, और सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मिलकर ये तय करना पड़ेगा। नहीं तो फिर कांग्रेस के लोग करते हैं वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग जहाँ पर करते हैं वो कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे, तो फिर चलने वाला नहीं है। खेतीबाड़ी लोगों को करना नहीं है, फूड ग्रेन हम आवश्यकता से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, चाहे फिर कितना भी फसल ख़राब हो जाए, जो भी हो जाए, फिर भी उसके बाद में भी सरप्लस ग्रेन आज हमारे पास है, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जो ज़मीन है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में हो, ये एक काम को हाथ में लेकर वॉर फुटिंग पर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमको। जितनी इंडस्ट्री खड़ी होगी उतना इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो उतना टैक्सेस ज़्यादा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, अब हम तो कभी बाहर देश को छोड़कर गए नहीं, लेकिन सुनते तो है ना, तो वो सीन हमको अपने देश में भी खड़ा करना पड़ेगा। फिर टैक्सेस आएगा, फिर टैक्सेस के माध्यम से फिर वापस पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पे होगा, ये सारा होते ही जाएगा। ये सेक्टर में ध्यान देने की आवश्यकता है मुझे लगता है, और उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। व्यवसाय करने वाले लोगों को, बीच में था ना कांग्रेस के ज़माने में भी हम सब्सिडी देते थे, तो अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों ने फैक्ट्रियाँ खोलना प्रारंभ कर दिया, 10 साल उसको टैक्सेस नहीं होगा। इस प्रकार का कोई ना कोई स्कीम निश्चित सरकार के माइंड में होगा भी, और वो लाएंगे और लाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन जो भी बातें मैंने कही है उसमें से कोई एक चीज़ पर भी अगर हम काम करेंगे तो जो आपके मन में है वो पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2004 से 2023, फ्रॉम 2004 टू 2023, about 60% of political party money has come from unknown and undisclosed sources. किसी के पास ट्रेस नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, अकाउंट्स में कुछ है नहीं। इसका उत्तर मैंने दे दिया। मैंने कहा ना कि मैं चुनाव जीतना चाहिए ऐसा आपको लगता है, आप खर्चा करते हो मेरे लिए, आपने तो अकाउंट में लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है ना, तो यही पैसा है वो, तीसरे चौथे लोग खर्चा करते हैं। और चुनाव भी एक, क्या उसको हम, अगर मैं कोई शब्द दूंगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरे चुनाव में भी
कोई एक धनवान आ जाता है तो किसी को पाव भाजी खिला देता है, किसी को गर्म दूध का ऑर्डर ही दे कर रखा होता है, जो भी आएगा उसको दूध पिलाओ। लगता है ना वो मेहनत करते हैं। तो ये जो आप कहते हो कि ये अकाउंट अनअकाउंटेड मनी है, कहाँ से आया और कहाँ गया पता नहीं चलता, तो इस तरह से होता है खर्चा ये सब। Okay. Sir, one last question. Actually, two last questions I have. Number one, now so we have BJP के member जीत गए and she has become mayor of Mumbai. या तो what growth do you think we will see in Mumbai? क्योंकि अभी process काफ़ी ज़्यादा simple हो जाएगा पहले के comparison में. अभी मैं आते समय एक क्लिप देख रहा था, वीडियो दादर का, जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हुआ था, लोगों को चलने के लिए भी जगह नहीं होता था, फेरी वाले सब वहाँ पर बैठते थे। ये सब निकालने का प्रयास शुरू हुआ है। रीति तावड़े जी ने जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन भी लोगों ने पूछा तो क्या प्रायोरिटी है, तो 2-3 बातों का प्रायोरिटी में उन्होंने एक मुंबई के फेरी वालों के बारे में कहा है। फेरी वाला पूरा हटना चाहिए कि तो हटना चाहिए, लेकिन कम से कम भाजी पाला, फल फ्रूट ये जो बेचने वाले हैं, आज हमारी प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुंबई शहर का पॉपुलेशन जैसे मैंने कहा कि बहुत बढ़ गया, उसके हिसाब से मार्केट नहीं बने। जो मार्केट रिजर्व प्लॉट थे वो भी सब एनक्रोचमेंट हो गए, और ये सारी चीज़ें जो लोगों को चाहिए ही, भाजी पाला तो लोगों को चाहिए ही, और ये सब फेरिसेबल आइटम है। किसान जो उगाता है, पकाता है, वो लिमिटेड टाइम में किसी के हाथ में जाकर उसको यूज़ होना चाहिए, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो फेरी वाला जोन बनाने का बहुत सालों से एक प्रयास है, वो हो नहीं रहा है। यहाँ पर भी सिर्फ सरकार और पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर करेंगे तो ये होने वाला काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने दिनों के। बिल्डिंग के लोग बोर्ड लगाते हैं कि फेरी वालों को अंदर आना मना है, बाहर बैठना मना है। तो इस सिस्टम कैसे वर्क होगा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन उत्तर हमको खोजना पड़ेगा दोनों को मिलकर। फॉर एग्जांपल कोरोना के समय पर एक सिस्टम इस प्रकार का डेवलप हो गया था, सवेरे 6-7 बजे लोग आते थे, एक नाके पे बैठकर भाजी पाला बेचते थे, फिर 9 बजे के बाद में चले जाते थे। इस प्रकार का एक सिस्टम ऑफिशियली उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ पर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो। इस प्रकार का एक मैकेनिज़्म को डेवलप हमको करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी ये सोचते है कि एक मुंबई शहर, जब हम इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करते हैं, तो जगह जगह पर इस प्रकार के लोग बैठकर ट्रैफिक का कंजेशन करेंगे, लोगों को चलने के लिए, पैदल चलने के लिए जगह ना हो, ये तो कोई परवड़ने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से मुंबई शहर का इन दिनों में कोस्टल रोड, ये मेट्रो का पूरा नेटवर्क पूरा हो जाएगा, तो आपको रास्ते पे लोग दिखेंगे ही नहीं। जब हम फॉरेन के साथ में इंडिया को कंपेयर करने की बात करते हैं, तो फॉरेन में भी जब 8 दिन का सामान एक बार जाकर मार्केट से लेके आओ, फ्रिज में डंप करो, 8 दिन खाओ, यही सिस्टम हमारे यहाँ पर भी आने लगे। जो विकसित देश में हुआ वो आपके यहाँ पर होगा ही। जो विकसित देश का कानून अगर आप अपने देश में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ही होना है। अब ये कब होगा, कितना समय लगेगा, उसमें कितने लोग पीसे जाएंगे, कितने लोग सूखे हो जाएंगे, वो समय बताएगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही ना, और भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये हम हमारे सारे गेस्ट को पूछते हैं। जो व्यूअर्स है उनके लिए आपका एक एडवाइस क्या होगा? वो कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, या नहीं, व्यूअर्स के लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप जुड़ जाइए इस सिस्टम में। ये कोई 227 नगर सेवक मिलकर इस मुंबई शहर का चित्र बदलेंगे नहीं। 36 MLA, 6 MPs, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये तो अपना काम करते ही हैं सब लोग। लेकिन जिस पिक्चर वाला मुंबई शहर को आप देखना चाहते हो, उसको अगर ज़मीन पर उतारना है तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आपको मेरी सुननी पड़ेगी, मैंने आपका सुनना पड़ेगा, दोनों मिलकर यह शहर कैसा ठीक ठाक हो उसके बारे में हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये 100% होगा क्या, तो बहुत जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा उसको। और ये सब बीमारी का इलाज एक ही मुझे दिखता है, जो छोटा आदमी है उसको जब तक हम उसके अपने पैरों पर उसको खड़ा नहीं कर पाएंगे, तब तक ये होना संभव नहीं है।
इसलिए छोटा जो आदमी है उसको एजुकेशन आसानी से मिले, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। छोटा आदमी अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको दवाई मिले, इसकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज जो मैं देख रहा हूँ, एक 25,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति वो जीता है, पेट मार कर जो भी खाना है वो खाता है, वही 25,000 में अपने बच्चों को एजुकेशन भी वो देता है, वही 25,000 रुपये के पगार में कभी बीमार पड़ गया तो दवा भी करता है, और यही 25,000 रुपये में से थोड़ा पैसा बचाकर अपने लड़के या तो लड़की की शादी की तैयारी भी वो करता है। तो टोटल डे में आप ज़रा सोच लो कि वो कैसे जीता होगा। ये अगर आप अपने दिमाग में उतार लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका उत्तर मिलेगा, ऑटोमेटिकली उत्तर मिलेगा। अब ये सारा चीज़ मुझे समझ में आता है, जो अन्य लोगों से थोड़ा ज़्यादा मुझे समझ में आता है, ऐसा मैं मान कर चलूँगा। तो क्या मैं मेरे ड्राइवर को 25,000 के जगह पे 40,000 रुपये देता हूँ क्या? तो नहीं देता हूँ। तो जब तक उसको 40,000 रुपया नहीं मिलेगा तब तक उसके जीवन में बदलाव तो आने ही वाला नहीं है, आने ही वाला नहीं है। तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए मैं मानता हूँ कि ये हमको करना पड़ेगा। अब अभी ये आप पूछेंगे कि कैसा चल रहा है, तो ये आज भी चल रहा है। वो 25,000 रुपये में उसका चल रहा है। तो उसके बुरे समय पर सरकार ने जो व्यवस्था किया है उसके माध्यम से उसको थोड़ा हेल्प होता है। वो जहाँ पर जॉब करता है वहाँ का सेठ और सेठानी उसको मदद करते हैं। मेरे पास इस प्रकार के बहुत किस्से हैं। मैं पूछता हूँ कैसे हुआ, तो सेठ के पास मांगा तो सेठ ने इतना ही दिया, इतना मांगा इतना दिया, लेकिन सेठानी को ठीक नहीं लगा तो फिर सेठानी ने थोड़ा और उसके पास से दे दिया। दोनों का मिलकर उसका काम हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एक सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, जो अपर मिडिल क्लास या तो उसके ऊपर के क्लास के लोग हैं, वो ये सारे लोगों को मदद करते हैं, इसलिए सिस्टम चल रहा है। लेकिन थोड़ा ऑफिशियल होगा तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। Thank काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। मुझे आपका एक्सपीरियंस सुनना है। आपको अच्छा लगा? आपको मज़ा आया? मुझे तो जो मैं कहता हूँ वो मेरे जहन में है, और मुझे अच्छा तभी लगेगा जब वो पूरा हो जाएगा तब। या तो मैं तो अभी जितना मैंने बातें आपको की तो मैं तो अभी घर जाते समय दुखी होने वाला हूँ, कि वो चिंता होती है ना। और पूरा मेरा जीवन उसी में गया है, और ये मेरा लाइफ है। और इतने बड़े बड़े पद पाने के बाद में भी मेरा जो जीवन शैली बिल्कुल बदला नहीं है, और जो एंजॉय करने के लिए समय मिला या तो पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तो उसको भी मैं उपभोग नहीं पाया, क्योंकि जहन में यही सारी बातें हैं। और ये मैं सिर्फ सुना नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, तो उसका भुक्तभोगी मैं हूँ। मैंने अपने बचपन में ये सारे पड़ाव पार किए हैं, और आज भी जिन लोगों के साथ में काम करता था वही क्लास के लोग हैं। तो बहुत कुछ मिलने के बाद में भी उसको उपभोग नहीं पाता हूँ, क्योंकि जहन में यही सारा है। तो परमात्मा करे मोदी जी के राज में आने वाले 10 साल में देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, शहर के लोगों ने सब कुछ दे दिया। नगर सेवक बीजेपी का दे दिया, एमएलए बीजेपी का दे दिया, एमपी बीजेपी का दे दिया, मेयर बीजेपी का दे दिया, मुख्यमंत्री बीजेपी का दे दिया, प्रधानमंत्री बीजेपी का दे दिया, राष्ट्रपति बीजेपी का दे दिया। ये सारा डेमोक्रेसी में जनता के पास जो था वो सारा जनता ने हमको दे दिया है। अब हमने जनता को देना चाहिए, और वो देने के काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। आज भी लोग मुझे कहते हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़कर 18 महीने हो गए, लेकिन उसी रफ्तार में उसी तरह का काम करते हो। तो बैकलॉग है ना। और मैंने हमेशा ये बात लोगों के सामने कहा कि जितना मैंने काम किया उससे ज़्यादा लोगों ने मुझे वोट दिया हर बार। तो कर्ज है माथे पे अभी भी, और कर्ज फेडने के लिए कोई पद होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिगर पद के भी आप फेड सकते हो, तो फेडने का काम कर रहा हूँ। सर मेरी इच्छा है कि ये पॉडकास्ट के थ्रू आपका मैसेज सभी को जाए, एंड ये पॉडकास्ट के थ्रू चेंज भी आए सिस्टम में और लोगों के मेंटालिटी में। चेंज नक्की आएगा, पक्का आएगा, उसके बारे में तो कोई शंका, कम से कम मेरे चिंता बहुत करता हूँ, लेकिन आशावाद भी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, थोड़े विपक्ष के लोग अगर संभल जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं तो फिर मोदी जी जिस प्रकार से देश को आगे ले जाना है वो तो ले ही जा ही रहे। देवेंद्र फडणवीस जी को जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना है वो तो लेके जा ही रहे, लेकिन उसका जो
आनंद सब लोगों ने मिलकर लेना चाहिए, वो नहीं लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका जो आनंद सब लोग मिलकर लेंगे तो नीचे वाले व्यक्ति को कुछ दिए बिगर ही वो 25% सुखी हो जाएगा। ये भी उसके पीछे का एक एंगल है। आज जो चिल्लाहट हो रही है कि सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, तो वो चिंतित हो जाता है और ज़्यादा कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं। तो इसको थोड़ा हम सब लोगों ने मिलकर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उसमें सभी लोगों का हाथ है। उसमें मीडिया ने अपना काम करना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना काम करना चाहिए। सभी लोगों ने थोड़ा हटकर जीने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्यों दुनिया के सारे देश के लोग हमारे ऊपर क्यों आँख टिका के रखें? बिकॉज वी आर ग्रोइंग ना, हम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, इसलिए उसको ब्रेक लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आधा वो 25% वो रोक रहे, 25% हमारे देश के लोग रोक रहे, तो 50% तो इस तरह से ही रोका जाता है। तो वो अगर कट हो गया तो फिर हम बहुत तेज़ी से आगे निकलेंगे। That's right. But thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। And it was a pleasure to have you on this show. एंड आगे भी इच्छा है कि एक बार हमारा शो बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंसेस आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा रीच मिलेगा, तब हम श्योरली इट वुड बी अ ऑनर टू अगेन हैव यू। श्योर, आई विल बी अगेन बैक। बट थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।